My dear students and all my dear viewers, my present video is for ICSE students, those who are in class 10, and this is my geography class, and here particularly in this class I will discuss about water resources. Water resources, which is one of the most important, most interesting topic for ICSE students. This particular chapter deals with those means of irrigation which are used generally in India, and important means are suppose well irrigation, tank irrigation, canal irrigation, and several other means of modern irrigation also. But before starting or before describing these things, let us have a small introduction about this chapter, and this is about the irrigation. Since India is an agricultural country, and the main thing for the agriculture is irrigation. Most of the farmers dependent upon the rainfall, and rainfall is not possible that it will rain according to our need. So we need extra irrigation, extra water supply to the agriculture, and that very additional or extra water supply to the agriculture is called irrigation. Actually, agriculture gets water from rainfall, but that water is not sufficient, and that cannot be according to our need at our proper time. That's why some additional water supply is given to the agriculture, and that additional water supply is called irrigation. Now here I will discuss about almost all the questions what may come in the exam, and I hope that those who are appearing in the board exams, if they are preparing these questions, they do not have any problem. So I am just describing the chapter in such a way that the question and answer form means such what type of questions are asked and in what way they are written. As everybody knows that questions in geography and history are written in points. So I will give the answer according to the points. That will be very beneficial for the students of ICSE, and I hope that everybody will learn thorough chapter after hearing my video. So when you will hear it, listen it very carefully, automatically he will be completely prepared for this chapter. So I am coming to the point for the first question, but before starting that, I once remember you all that if you have not yet subscribed my channel, you must subscribe it so that all the videos when I will just give you, first of all it will reach to you. So apart from that, you must share my link to the other students also, so that they will also be beneficial. And if this video is useful for you, you must like it. So before investing any more time, I am just coming to the point, and the questions first may come: what is the importance of irrigation in India? Means why irrigation is important in India. As we know that India is an agricultural country, and about 60-70% of our population is dependent on agriculture, and water is the basic input for agriculture. Without water, agriculture is not possible, and India is an agricultural country. That's why irrigation is very essential. Point number one. Point number two, irrigation enables the farmer to continue their agricultural activity throughout the year. Actually, as we know that rainy season is only for 3 months. So if it rains only for 3 months, so if any farmer needs to cultivate the field other than 3 months, suppose they want to in December or January, so they need irrigation because rainfall is only for 3 months. So if they want to do any agricultural activity throughout the year, they need water or they need irrigation. Third thing, irrigation is must for commercialization of agriculture. If we want to commercialize our agriculture, if we want to export, import or sell it in the market, then we have to produce in a large scale, and for large scale production, irrigation is quite essential. So I have given you 3 points. What is the importance of irrigation in India? First point, since it is an agricultural country,
therefore and water is the basic input. Second one, irrigation enables the farmer to continue their agricultural activity throughout the year. And the third thing, irrigation is must for commercialization of agriculture. Now again, the question may come, why is there need for irrigation in India? Why is there need? What is the need of irrigation? बताओ, what is the importance of irrigation and what is the need? तो need क्या है? पहला, क्यों जरूरत पड़ता है यानी हमें इरिगेशन का? क्योंकि इंडियन फार्मर जो आमतौर पर यानी नेचर पर डिपेंडेंट रहता है, उसको इरिगेशन डालना इसलिए पड़ता है एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि रेनफॉल इन इंडिया इज़ वेरी अनसर्टेन. इंडिया में कब रेनफॉल होता है और कब नहीं होता है इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है. दूसरा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं पर बहुत कम. तो ज़्यादा अगर हो गया तो भी फसल बर्बाद हो गया और कम हुआ तो फसल सूख गया. तीसरा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन विच रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर सप्लाई. हर एक क्रॉप को एक जैसा वाटर नहीं लगता. जैसे हम लोग राइस करते हैं तो धान की जब खेती होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है, पानी जमा हुआ रहता है. लेकिन जब व्हीट करते हैं तो उसमें अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगा तो व्हीट क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्रॉप. सो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है. और ऊपर से जो बारिश होगी तो हमारे हिसाब से तो होगी नहीं, तो इसीलिए इरिगेशन डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा इरिगेशन, जो अपने हिसाब से उस क्रॉप के लिए जितना सूटेबल वाटर है हम उतना ही डालते हैं. तो ये 3 पॉइंट हो गया नीड फॉर इरिगेशन. पहला क्या हो गया? रेनफॉल का अनसर्टेन होना. दूसरा हो गया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. और तीसरा, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल का होना. तो ये 3 कारण है नीड फॉर इरिगेशन ऑफ इंडिया. लेकिन अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा अभी चूँकि मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक तरह से देखा जाए तो अब मैं कहता हूँ ये जो वाटर है इसमें सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर 2 तरह की बात होती है. तो सरफेस वाटर क्या चीज़ है और वाटर स्कार्सिटी क्या चीज़ है? तो सबसे पहले हम लोग सरफेस वाटर की बात करते हैं यहाँ पर और फिर वाटर स्कार्सिटी की बात करेंगे. और वाटर स्कार्सिटी का कारण क्या है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर. तो सरफेस वाटर का मतलब होता है ऐसा वाटर जो अर्थ के सरफेस पर होता है, सतह पर होता है. जैसे कोई रिवर है, कोई स्ट्रीम्स है, लेक्स है, रिजर्वियर्स है, पॉन्ड है. तो ये कहाँ पर है? ज़मीन के ऊपर है ना. तो ज़मीन के ऊपर वाले वाटर को सरफेस वाटर कहते हैं. अब दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि वाटर स्कार्सिटी क्या चीज़ है? तो वाटर स्कार्सिटी का सीधा मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ वाटर. शॉर्टेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू द डिमांड इज़ नोन एज वाटर स्कार्सिटी. जितना हमारा डिमांड है उसके मुकाबले अगर हमारा वाटर सप्लाई उतना नहीं है तो हम वाटर स्कार्सिटी कहते हैं उसको. लेकिन वाटर स्कार्सिटी क्यों होता है, उसका क्या कारण है? तो पहला कारण जो हम देख सकते हैं वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर. जो सोर्सेस है उसको हम ओवर एक्सप्लॉयट करते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उसका हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर. वाटर को हम लोग ठीक से मैनेज नहीं कर पाते. जैसे वाटर अगर रेनफॉल अगर होती है तो वाटर कहाँ होता है? इतनी जोर की वर्षा होती है और वो इतना वर्षा हुआ कहाँ चला गया? बह के चला गया ड्रेन में. ड्रेन वाला पानी क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया. अगर उसी को हम रूफ के ऊपर छत पर अगर उसको स्टोर करें या उसको हम एक जगह उसको ये करें, जमा करें, तो शायद वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है. तो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट. तीसरा है अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. हमारे देश में जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके पास इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता. अनइक्वल एक्सेस ऑफ वाटर, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और किसी को बहुत कम मिल रहा है. और चौथा है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण. सो ऑल्सो दीज आर द फैक्टर्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके बाद इम्प्रूवर मैनेजमेंट एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर जो सोर्सेस है, ये सभी वाटर स्कार्सिटी का मेन कारण है. अब सवाल यहाँ उठता है कि वाटर स्कार्सिटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मीन्स व्हाट शुड बी द मेजर्स टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी. तो पहला पॉइंट आ सकता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट करना चाहिए. दूसरा पॉइंट आता है कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन या अदर जो वाटर सेविंग मेथड्स है इरिगेशन में उसका हमें यूज़ करना चाहिए. सो 2 measures I have told you. First measure, rain water harvesting should be promoted, and the second thing I have told you, drip irrigation, sprinkler irrigation or other modern means of irrigation should be used. तो ये था यहाँ पर वाटर स्कार्सिटी को लेकर मेरा क्वेश्चन. हम लोग यहाँ पर आते हैं
इसके बाद जो क्वेश्चन आ सकता है उसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा इस पर आते हैं कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रिमिटिव एंड सम मॉडर्न मेथड्स। तो कुछ मेथड ऐसा है जो प्रिमिटिव है और कुछ ऐसा है जो मॉडर्न है। मतलब प्रिमिटिव मतलब बहुत ही ओल्ड मेथड जो हम लोग करते आ रहे हैं इरिगेशन। तो पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है जैसे वेल इरिगेशन। प्रिमिटिव मेथड का एग्जांपल है वेल इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, टैंक इरिगेशन। वेल, टैंक और कैनाल ये तीन है, यानी ये ट्रेडिशनली होता आ रहा है, प्रिमिटिव मेथड है। और मॉडर्न मेथड में आजकल क्या हो गया है, तो नए नए मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं जिसमें वो जो वाटर सेविंग मेथड है, और वो क्या है, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन। तो ये जो इरिगेशन है ये मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन है और इसका यूज़ आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक वाटर का जो जनरल असेसमेंट है वो हमने देखा यहाँ पर, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा वाटर का जो सोर्स है, यानी इरिगेशन का जो सोर्स है, वो इरिगेशन का सोर्स कहाँ पाया जाता है और कौन कौन सा है। तो पहले हम यहाँ पर वेल इरिगेशन के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं। वेल इरिगेशन क्या चीज़ है? तो वेल इरिगेशन में आमतौर पर हम देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है वेल इरिगेशन पर कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया का सबसे मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है और ऐसा क्यों है? तो इसका सीधा जवाब है वेल इरिगेशन। नॉर्थ इंडिया का सबसे मेन सोर्स है वेल इरिगेशन, और ऐसा क्यों है? यानी अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या भी आ सकता है कि व्हाई वेल इरिगेशन इज पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया। तो आंसर तो सेम होगा, बट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। सो वेल इरिगेशन नॉर्थ इंडिया पॉपुलर क्यों है? पहला कारण, वाटर टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाई है। गंगा बेसिन में खासतौर पर वाटर टेबल इज़ वेरी हाई। दूसरा है कि वेल्स आर ईजियर टू डग। वेल जब हम खोदते हैं तो आसानी से खुद जाता है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में खासतौर पर एलुवियल सॉइल है जो सॉफ्ट होता है, इसलिए उसको डिगिंग करने में आसानी होती है। और तीसरा यहाँ पर कि एडिक्वेट रेनफॉल कॉन्स्टेंटली रिप्लेसेस द ग्राउंड वाटर। चूँकि रेनफॉल यहाँ ज़्यादा होता है इस एरिया में, तो इसीलिए ग्राउंड वाटर टेबल भी यहाँ पर ज़्यादा रहता है। सो हम वेल इरिगेशन को ईजिली यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और लोग करते हैं। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है ट्यूबवेल से रिलेटेड, ये भी वेल इरिगेशन के पार्ट का ही पार्ट है। ट्यूबवेल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? ट्यूबवेल से हम इरिगेशन करते हैं, इसका क्या एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज ये है दे आर द रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का ये रिलायबल सोर्स है, मुख्य सोर्स है। दूसरा है दे कैन बी डग इजीली, इसको हम इजीली डग कर सकते हैं। और तीसरा है दे ऑक्यूपाई लेस एरिया इन कंपैरिजन टू सरफेस वेल्स एंड कैनाल्स। इसके मुकाबले कम एरिया लेता है। ट्यूबवेल में बहुत कम जगह लेता है, तो ट्यूबवेल कम जगह लेता है उतना, और अगर हम तालाब खोदते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है। तो ट्यूबवेल का एक बहुत बड़ा लाभ है कि जगह कम लेता है। दूसरा, इसको ईजिली लोग डिगिंग कर सकता है। और तीसरा है एक रिलायबल सोर्स ऑफ इरिगेशन है। लेकिन इसका बहुत सारा डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज है कि फार्मर को इसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर वो बोरिंग करता है और बोरिंग से अगर वो पंपिंग सेट से या इलेक्ट्रिसिटी से वाटर को ज़मीन के नीचे से खींचता है, उसके लिए उसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उठाना पड़ता है। दूसरा यहाँ पर कि ग्राउंड वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो ग्राउंड वाटर टेबल जो है कई स्टेट्स में ऐसा देखा गया है कि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला गया है। और तीसरा है कि इससे एक लिमिटेड एरिया ही इरिगेट हो सकता है, ये कैनाल इरिगेशन की तरह लार्ज एरिया को इरिगेट नहीं कर सकता। सो दीज आर द 3 डिसएडवांटेज ऑफ वेल इरिगेशन। तो पहला हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी पर पैसा खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश के किसान आमतौर पर गरीब होते हैं। दूसरा है यहाँ पर कि ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो आस्ते आस्ते नीचे चला जाता है इससे। और तीसरा है कि लिमिटेड एरिया को ही इरिगेट कर पाता है। अब इससे वेल इरिगेशन से रिलेटेड जो और क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड आ सकता है। तो वेल इरिगेशन में आ सकता है यहाँ पर कि वेल इरिगेशन किस स्टेट में ज़्यादा होता है। तो मैंने अभी डिस्कस किया है कि वेल इरिगेशन नॉर्थ इंडिया में होता है, तो नॉर्थ इंडियन स्टेट का नाम लिखना है। नॉर्थ इंडियन स्टेट में किसका? यूपी का, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब, बिहार। यूपी, हरियाणा, पंजाब और बिहार, ये 4 स्टेट याद रखेंगे, इसके लिए काफ़ी है। और कौन कौन सा कंडीशंस रिक्वायर्ड है, अभी हमने वहाँ जो देखा नॉर्थ इंडिया वाला पॉइंट, तो वही चीज़ यहाँ पर आएगा कि वाटर टेबल हमने देखा था कि नॉर्थ इंडिया में बहुत हाई है। तो यहाँ क्या ले कि उसी जगह पर ये इरिगेशन होगा जहाँ पर वाटर टेबल हाई होगा। तो वाटर टेबल शुड बी हाई। सेकेंड वन, ग्राउंड शुड बी सॉफ्ट।
प्रेफरेबली एलुवियल सॉइल, एंड थर्ड वन एरिया मस्ट गेट एडिक्वेट रेनफॉल। तो ये 3 पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर वेल इरीगेशन ज़्यादा पॉपुलर होता है, और तीनों पॉइंट नॉर्थ इंडिया में है, इसलिए यहाँ पर ये इरीगेशन ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये था यहाँ पर वेल इरीगेशन के बारे में। हम लोग चलते हैं, इसके बाद जो दूसरे टाइप का इरीगेशन है वो है टैंक इरीगेशन। टैंक इरीगेशन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, पहले इसका एडवांटेज देखते हैं। टैंक इरीगेशन आमतौर पर चीपर होता है इन कंपेरिजन टू अदर मीन्स ऑफ इरीगेशन। दूसरा है इट इंक्रीज द वाटर टेबल ऑफ सराउंडिंग एरिया। जहाँ पर हम टैंक लगाते हैं यानी तालाब खोदते हैं तो उस एरिया का अगल बगल का जो यानी ग्राउंड वाटर टेबल है वो वाटर टेबल बढ़ जाता है। तीसरा है कि टैंक प्रोवाइड ए सोर्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में भी तालाब में आमतौर पर पानी रहता है, इसलिए समर सीजन के लिए भी जब अदर सोर्सेज सूख जाता है तो ये यूज़फुल बना रह सकता है। ये 3 इसका एडवांटेज है। इसके अलावा इसका डिसएडवांटेज भी है, और डिसएडवांटेज यह है कि टैंक बहुत बड़ा एरिया को कवर कर लेता है। टैंक जो एरिया कवर करता है दैट इज़ वेरी बिग एरिया कवर कर लेता है, और इसमें अगर वो एरिया टैंक में नहीं जाता तो हो सकता है वहाँ पर हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्टेड हो जाता है थ्रू इवापोरेशन, क्योंकि तालाब में जितना बड़ा तालाब होता है उसका जो वाटर सरफेस है पूरा पर कॉन्स्टेंटली इवापोरेशन हो रहा है, तो इवापोरेशन होने की वजह से क्या होता है तो वहाँ पर यानी पानी जल्दी जल्दी वहाँ पर सूख जाता है। तीसरा है कि टैंक जो होता है नॉन पेरेनियल होता है, और ये समर सीजन में आमतौर पर सूख जाता है, इसका कोई अपना सोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से ये ड्राई हो जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। टैंक इरीगेशन से रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकता है उसमें हम कह सकते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट में पॉपुलर है, और ये यानी खासतौर पर साउथ इंडिया में क्यों पॉपुलर है। तो ये दोनों क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से स्टेट में पॉपुलर है। तो मैंने पहले ही कह दिया साउथ इंडिया, तो इसका मतलब साउथ इंडियन स्टेट में होगा, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, 4 स्टेट याद रखेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड उड़ीसा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और आ सकता है, और जो बहुत आता भी है क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, कि वाई इट इज़ पॉपुलर इन साउथ इंडिया, वाई टैंक इरीगेशन इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, टैंक इरीगेशन इज पॉपुलर इन साउथ इंडिया, जिसको हम पेनिनसुलर इंडिया भी कहते हैं, ड्यू टू फॉलोइंग। पहला रीजन क्या है, सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज़ अनइवन। पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट्स है समझते तो अनइवन है, मतलब एक जैसा प्लेन जैसा नहीं है, मतलब अनइवन है, ऊंचा है, नीचा है। अब बहुत सारे नेचुरल डिप्रेशंस वहाँ पर बन जाते हैं, बाई नेचर ही वहाँ पर बहुत सारा गड्ढा ऐसा बना हुआ है, जहाँ पर क्या कहता है तो टैंक वहाँ पर इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। दूसरा यहाँ पर ये जो रीजन है उसमें हार्ड रॉक्स ज़्यादा है। हार्ड रॉक्स ज़्यादा होने की वजह से पर्कुलेशन कम होता है, मतलब पानी जो है ज़मीन के अंदर बहुत ही कम जाता है, तो जिसके वजह से यहाँ पर वाटर जो है बना रह जाता है। और तीसरा है ये जो रीजन है इसमें मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पर, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर यानी वर्षा होती है, और वर्षा होती है तो क्या हो जाता है रेन वाटर को वो कलेक्ट कर लेता है, यानी सारा का सारा जो पानी है वो वहाँ पर उन छोटे छोटे पार्ट्स में जमा हो जाता है। इस तरह से ये इसके यानी एरियाज़ हैं, और साथ में साउथ इंडिया में क्यों होता है उसका 3 कारण जैसे मैंने यहाँ पर कहा। कौन कौन से कारण, अनइवन लैंड, दूसरा यहाँ पर यानी इसके अलावा हार्ड रॉक के कारण पर्कुलेशन का लेस होना, और तीसरा यानी ज़्यादातर जो रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी यानी पानी जो है वो उसमें जमा होता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू टैंक इरीगेशन। सो हमने यहाँ पर वेल इरीगेशन, टैंक इरीगेशन क्लियर कर लिया है। अब इसके बाद जो इरीगेशन आएगा दैट इरीगेशन विल बी रिगार्डिंग कैनाल इरीगेशन। कैनाल इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन बाकी है अभी, और इसके अलावा है इसमें यानी वाटर जो सेविंग मेथड्स है वो, तो उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और चैप्टर काफ़ी बड़ा है। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट कर दिया हूँ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा, और बाकी का जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। सो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। सो और सेकेंड वीडियो का, इसके नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।